حوالہ جات پڑھے گئے. پڑھنا کون سا چاہیے تھا؟ 40ویں باب میں سے، ہے نا، کہ لیکن مختلف حوالہ جات پڑھے گئے. ریفر نے کہا کہ یہ پہلے چیپٹر سے لے کر 39ویں چیپٹر تک جو ہے وہ سروے جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے کیا سیکھا. 39ویں باب تک 39 چیپٹر تک ہم نے کیا سیکھا. یسایہ کی کتاب آپ سب جانتے ہیں کتنے چیپٹر ہیں؟ 66 ہیں. یسایہ کا مطلب ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے. اس کتاب کو منی بائبل کہا جاتا ہے. یعنی بائبل کی کتنی کتابیں ہیں؟ 66. اور اس کے چیپٹر کتنے ہیں؟ 66 ہیں. بائبل کے 2 حصے ہیں، پرانا اور نیا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ کتنے ابواب اس میں کتابیں ہیں؟ 39. اور نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں. 39 کتابیں، یعنی اس کے 39ویں باب تک ایک حصہ ہے اس کتاب میں، اور پھر اگلے 27 باب جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے. رائٹر ایک ہی ہے، یسایہ، اور اس نے 4 بادشاہوں کے ساتھ خدمت کی. اور پہلے باب سے لے کر 39ویں باب تک اس میں سے ہم نے کیا سیکھا، اس کی طرف ہم زیادہ دھیان کریں گے، تاکہ بجائے اس کتاب کا تعارف سننے کے ہم ان ابواب کے حوالے سے کہ ہم نے ان مہینوں میں 39ویں باب تک کیا سیکھا. یہ اس کے لیے بڑا زبردست طائران نبوت کا شاہین. ہاں جی، یسایہ سے کیا کا خطاب ہے؟ کیا؟ طائران نبوت کا شاہین. یعنی طائر کہتے ہیں پرندہ، اور نبوت کے جو پرندے ہیں ان میں سے یسایہ کو کیا کہا گیا؟ شاہین کہا گیا. اور عہد قدیم کا مبشر بھی ہے. یعنی اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے بشارت کے حوالے سے دیکھیں تو یسایہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عہد قدیم کا کیا ہے؟ مبشر ہے. اور ان 39 ابواب تک جو مختلف چیزیں ہم نے سیکھی، اس میں سے ہم 6 چیزیں آج دیکھیں گے. آپ ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی پڑھتے جائیں گے. مقابلہ ہوگا کس کا؟ حوالے نکالنے کا. یہ مرد اور عورتوں میں ہوگا یا سب میں ہوگا؟ سب میں ہوگا. ٹھیک ہے. کسی بندے دی بھی آواز آنی چاہیے نا، وہ سب دے وچ کہن. ٹھیک ہے، مطلب کسی نہ کسی آدمی کی بھی جو ہے وہ آواز، اور بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جلدی جلدی ہم نکال کر ان حوالہ جات کو پڑھیں گے. آپ کو یاد ہے کہ خدا کا نام پرانے پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اس نام سے خدا نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اور اسی طرح یسایہ کی کتاب جو ہے اس میں اسرائیل کا قدوس جو ہے وہ پہلے باب سے لے کر 39ویں باب تک اسرائیل کا قدوس، جہاں بھی لفظ استعمال ہوا زیادہ تر ان ابواب میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ اسرائیل کا قدوس. اور اس کا جو مرکزی مضمون تھا، یعنی 39ویں باب تک، وہ تھا بقیہ لوٹ آئے گا، بقیہ واپس آئے گا. اور یہ اس کے ایک بیٹے شیار یا شوب، اس نے اس لیے رکھا اس کا نام کہ اس کا مضمون، اس کے نام کا مطلب اس ان 39 ابواب کا مضمون ٹھہرا. یعنی بقیہ واپس آئے گا یا بقیہ لوٹ آئے گا. خدائے قدوس، 6 باب 3 آیت. جی، آج کتاب ایک ہی کھولنی ہے. آگے جی. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. قدوس 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 کیا ہے؟ رب الافواج، خدائے قدوس. اور یاد رکھیں کہ مختلف کتابوں کے مختلف مضمون، مختلف انبیاء کی مختلف مضامین، اور یہ قدوسیت جو ہے اس کی جو 39 ابواب یا پوری یسایہ کی کتاب ہے، وہ خدا کی قدوسیت پر. اور پھر
क्योंकि वो पाक है इसलिए इंसान भी क्या ठहरे, पाक ठहरे। ये ज़रूरी है कि जो उम्मत, जो लोग खुदाए कद्दूस को मानते हैं वो कद्दूसियत पर क्या रखें, ईमान रखें। ऐसा नहीं है कि वो माने तो खुदाए कद्दूस को लेकिन अंदर से उनके अंदर तकदीस का मरहला जो है वो बिल्कुल बंद हो। जी, पहला बाब 4 आयत। जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह व बदगश्ता हो गए। क्या किया? इस्राएल के कद्दूस को क्या जाना और किस तरह जाना? किस तरह जाना? कौन कौन से खिताबात देकर बयान किया गया? क्या किससे किससे लदी हुई कौम? बदकिरदारी से, खताकार ग्रोह और बदकारों की नस्ल, मकार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया। और ये जब हम हवाला पढ़ते हैं तो खुदाए कद्दूस एक तरफ रह गया और कुल्ली सियाह एक तरफ हो गई। इसका मतलब है कि जो लोग खुदाए कद्दूस को मानते हैं लेकिन उनको खुदा ऐसे खिताब देता है तो इसका मतलब है कि ये खुदा के कद्दूस को क्या किया? हकीर जाना। 5वें बाब की 16वीं आयत। लेकिन रब्बुल पाक अदालत में सरबलंद होगा और खुदाए कद्दूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। खुदाए कद्दूस की तकदीस उसने अपनी नस्ल के लिए, ताकि वो मकार औलाद न रहे, वो बदकिरदारी से लदी हुई कौम न कहलाए, इसलिए तकदीस का यहाँ पर जिक्र किया गया। इसी तरह हम 5वें बाब की 24वीं आयत भी जो है वो पढ़ेंगे। जी, जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल पाक की शरीयत को तर्क किया और इस्राएल के कद्दूस का कलाम को हकीर जाना। इस्राएल यानी जो इस्राएल का कद्दूस है उसकी शरीयत क्या है? वो तकदीस है। इस्राएल के कद्दूस की शरीयत क्या है? कि इंसान क्या हो? पाक हो। और याद रखिए कि मजमून यानी पहले बाब से लेकर 39वें बाब तक वो रहा कि खुदा कौन है? इस्राएल का कद्दूस है। इसी तरह हम और हवाला जाते हैं लेकिन उसमें से फिर मखलूक के मुकाबले में बुलंद व यकता। याद रखिए मखलूक कौन कौन सी जिसके साथ इंसान को इस्राएल के कद्दूस को बराबर ठहराता रहा। आइए 31वें बाब की 30वीं आयत देखिए। क्योंकि मिस्री तो इंसान हैं, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। तो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हमायती गिर जाएगा और वो जिसकी हमायत की गई पस्त किया जाएगा और वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। गौर करें कि मिस्रियों के देवता मक्खियाँ, मेंढक, है ना, पढ़े थे ना, याद है कि भूल गए? देवता 10 देवता उनके पढ़े थे ना। और वो उनका जो बड़ा देवता है जिसका नाग है ना की तरह उसका जो है वो चेहरा, और फिर फ़ाराउन और मिस्री कौम यानी दरियाए नील को क्या मानते थे? बड़ा देवता। और गौर करें कि जो मखलूक है, जो खलक किए गए, उनके बारे में, उनके साथ इस्राएल के कद्दूस को किस तरह मिला सकते? कोई इंसान, कोई मखलूक खुदा नहीं हो सकती, खुदा के बराबर नहीं हो सकती। और वो मखलूक जिनमें कद्दूसियत ना पाई जाती हो वो तो बिल्कुल भी खुदा के रिश्ते में भी शामिल नहीं हो सकते। 29वें बाब की 26वीं आयत भी देखिए।
26 नहीं है। हाँ जी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 16वीं आयत, सॉरी। आप तुम कैसे टेढ़े हो, क्या तुम्हारा मट्टी के बराबर गिरा जाएगा या वजू पर मसनू, हाँ जी, अपने साने, से कहेगा कि मैं तेरी तरफ नहीं, या मखलूक अपने खालिक से कहेगा कि तू कुछ नहीं जानता। क्या मखलूक खालिक से कहेगा कि तू क्या नहीं, कुछ नहीं। और इसमें गौर कीजिए कि खुदा ने इंसान के अलावा चरिंद परिंद, मट्टी, सूरज, चांद, सितारे, फरिश्ते, बागी फरिश्ते और फरिश्ते, हर किस्म की मखलूक को किसने खलक किया? वो खुदा ने खलक किया। इसलिए कोई मखलूक खुदा के बराबर नहीं हो सकती, बल्कि खुदा इस्राएल का कद्दूस खुदा, जो उसको मानते हैं उनकी तकदीस के लिए भी, कि वो इस चीज़ से भी पाक हों कि वो खुदाए कद्दूस को किसी मखलूक के बराबर न ठहराएं, न माने, न खौफ रखें। कई दफ़ा हम मखलूकात का क्या रखते हैं? खौफ रखते हैं। क्या रखते हैं? खौफ रखते हैं। लेकिन याद रखें, जब हम मखलूकात से डरते हैं तो फिर खुदाए कद्दूस का खौफ हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता, फिर मखलूकात का खौफ हमारे अंदर बसा रहता है। और खालिस ताल्लुक़ चाहता है खुदा। जो तीसरी चीज़ हमने सीखी, दूसरी चीज़ सीखी, वो क्या थी? कि खुदा अपने साथ खालिस ताल्लुक़। आइए इसमें से भी चंद हवाला जात पढ़ते हैं जी। पहला बाब, दूसरी आयत। तो ऐ आसमान और काम लगा ऐ ज़मीन, जो खुदावंद को फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चर्नी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। ख़ास और खालिस ताल्लुक़। खुदा हमारे साथ क्या चाहता है? ख़ास और खालिस। वो कहता है कि गधे और बैल को तो क्या है? मालिक की पहचान है। कल भी किसी ने सवाल किया वहाँ यूईटी में परसों रात को, कि जो फिरने वाले काहिन हैं, पादी ज़बान हैं, उनके हवाले से कुछ जिक्र हो रहा था। और यूईटी का या और तो हाल हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी पादी साहब बन के आ जाते, है ना? कोई भी बन गए, पता लगा कि कल ये, आज तो नहीं थे, कल ये पादी साहब बन गए थे। तो मैंने उन्हें एक एग्जांपल दी कि हम सब सियाने हैं, हम सबको हर एक चीज़ का पता है। क्योंकि जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं ना, तो हम मेडिकल स्टोर पे जाते, क्यों नहीं जाते? वो भी तो दुकान है। वहाँ आलू नहीं मिलेंगे, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ पर मेडिसिन। तो हम सियाने हुए ना फिर, है ना? हमें पता है कि मेडिकल स्टोर पर कब जाना है? जब हमने दवाई लेनी है। और सब्ज़ी की दुकान पे कब जाना है? जब हमें भूख लगेगी तो हमने सब्ज़ी की दुकान पे जाना है। हम बिल्कुल सियाने हैं। जब हम बीमार होंगे तो अच्छा डॉक्टर देखेंगे, ऐसे ही ना? जो डॉक्टर हमें समझ आए कि ये डॉक्टर टकन डॉक्टर है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? अच्छे डॉक्टर के पास। जब बच्चों को ट्यूशन रखवानी होगी तो हम टीचर देखेंगे, और कोई भी पकड़ लेंगे। क्या काम सीखा? नहीं। क्या करेंगे? अच्छा टीचर देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? सियाने हैं, है ना? सियाने हैं कि नहीं है? हमें हर चीज़ का क्या है? लेकिन खुदा का इतराज़ वाजिब है कि हर एक चीज़ का पता है इनको। और इनके गधे और बैल को भी ये पता है कि मेरी खुरली, मेरा मालिक कौन है। लेकिन इनको खुदा का पता नहीं लगता, इनको अपने काहिन, अपने रहनुमा का पता नहीं लगता। जेड़ा भी आया उतना बैकाओ जी दुआ करिए, है ना? ऐसे ही ना? खुदा दा खादम से जी, ओ किसने कहा?
है ना, ऐसे ही ना। और क्या होता है, क्या होता है, दबे पांव घुस आते हैं। और ख़वातीन, याद रखिए, वो ख़वातीन को ज़्यादा काबू करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, खौफ ज़्यादा पाया जाता है। हमारे एल्डर साहब थे, राना अयूब साहब, वो उनके घर में भी अतवार वाले दिन जब चर्च का टाइम होना, उस वक्त एक बंदे ने आ जाना। विल्सन साहब थे, वो भी पेस्टर थे, तो उन्होंने आ जाना। एल्डर साहब ने नोट कर ली कि ये बिल्कुल चर्च के टाइम हमारे घर आ जाता। और वही शुरू हो गया कि घर में ख़वातीन जो है ना कि बहुत दुआ को भाई ये बड़ा है ना, बस हुण तो खुदा नूं ही ला लेंदा इत्थे, गिरजे च नहीं, खुदा इत्थे हुंदा जे। तीसरी दफ़ा जब वो आए तो एल्डर साहब ने दरवाज़ा खोल लिया, उनका ओ भाई जी इधर ही आ जाए, इत्थे बहु मेरे को, हाँ जी दुआ करिए, मेरे को ही कर लो, बच्चा ने गिरजे जाना। नहीं, मैनू खुदा ने आख्या कि दुआ करनी है। वह एल्डर साहब जरा मुँह जोर एल्डर थे, उन्होंने कहा मैनू खुदा होने ही आख्या भाई रिया ने चित्र मारना, तानू पैगाम फ़र्क दिता, मैनू फ़र्क दे दिता। हाँ जी। और क्या हुआ फिर, वो भाई जी दोबारा नहीं आए। आप इतना सख्त रिएक्ट ना करें, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको दुआई का पता है, आपको किसी और चीज़, हर चीज़ का पता है। वो एक सिख था, उस लतीफ़े बने हुए ना सिखों सरदारों पे, वो कील उसने ऐसे किया तो देखा कील तो मैंने इस दीवार पे लगाना है, तो इधर तो टोपी है, वो इस दीवार पे लगा दिया। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ, हम कील का रुख चेंज कर लेंगे, है ना। पता क्या है, हम क्या हैं, सियाने हैं। इसलिए हमें सियाने होते हुए खुदा हमारे ऊपर क्या करता है, हमारे ऊपर क्या करता है, इतराज़ करता है। क्या इतराज़ किया था, यही हवाला दोबारा पढ़ें जी। किस किस को कहा? आसमान और ज़मीन को। कितना बड़ा इतराज़। हाँ जी जी। मेरे लोग कुछ नहीं। इस मामले च की ने सियाने नहीं, है ना। इस मामले में क्या नहीं, सानू ये भी नहीं पता सी गिरजे ना रुसना क्यों है, क्यों रुस जाना, है ना। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं, हमें ये भी अंदाज़ा नहीं कि हमने खुदा के साथ नाराज़ कब होना, गुस्से कब होना। एक बंदा मुख्तार भाई के घर घुसा है, मुझे बर्तल भाई ने फ़ोन किया कि जल्दी आए, कुछ चीज़ निकालनी। मैंने इतना से डंडा पकड़ लिया घर से, मैंने कहा पता नहीं शायद कौन घुस गया, मैं पकड़ के उधर घर चला गया। तो वो बंदा आगे सिखा रहा हो कि हम अगर गुनाह करें तो हमारी उम्र कम हो जाती है, और हम अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं अगर हम गुनाह ना करें। मैं कि जनाब ये मैस खा लाँगा तुम तो जाओ। उस दिन मैंने उनको खींचा, वो उन्होंने कहा मैं मुनीर आशर ना मिल जाना है। मैं लाओ जी, ये तो बड़ा फ़ायदा होएगा, तू जाके, है ना। वो 2 महीने उनके साथ मिला भी रहा और कुछ भी नहीं हुआ। तो सियाने हैं हम, है ना। हम क्या हैं, हर मामले में सियाने हैं। लेकिन मेरी कौम, मेरी नस्ल क्या है, सुन है आसमान और सुन है ज़मीन। 5वें बाब की पहली आयत। अब मैं अपने महबूब के लिए एक महबूब का गीत उसके पाकिस्तान के लिए गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक ज़रखेज़ पहाड़ पर था। मेरे महबूब का, और ये खुदा इस तरह का खालिस और ख़ास ताल्लुक, खालिस और ख़ास ताल्लुक चाहता है। खुदा हमें महबूब कहता है, अपने बेटे और बेटियां कहता है। वो खालिस और ख़ास ताल्लुक चाहता है, इसलिए क्योंकि वो कौन है, खुदाए कदूस है, और वो अपने लोगों को की तकदीस के लिए, कि वो सिर्फ
गुनाह का इकरार ना किया करें, वो सिर्फ क्या ना करते रह करें, दुआ इबादत करते रहें और लेकिन अंदर से पाक ना हो, क्योंकि वो जानता था कि ये मैं ही कर सकता हूँ, इनकी तकदीस कौन कर सकता है, मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए खुदा ने हमें महबूब के नाम से, और जो महबूब है खुदा का क्या है, महबूब है, वो क्या है, कलीसिया है, वो हक का सतून है। इसलिए खुदा ने इस जो यशायाह ने इस किताब के इन अबवाब में जो दूसरी चीज़ हमें सिखाई, वो खुदा खालिस और ख़ास ताल्लुक़ चाहता है। पहला क्या था, इसराइल का कदूस, और जो खुदा चाहता है कि हम खालिस ताल्लुक़ में गुनाह और उससे क्या हो, उसके ख़िलाफ़ हो। 8वें बाब की 13वीं आयत पढ़िए। तुम रब्बुल फ़ाज को ही मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उसी से खाइफ रहे। तुम क्या करो, जानो और उसी से डरो। और ये ख़ास ताल्लुक़ में रुकावट है। खालिस और ख़ास ताल्लुक़ में क्या है, जब हम मखलूक़ात से डरते हैं, जब हम फरिश्तों, भूतनियों और किससे डरते हैं, लोगों से डरते हैं। इसलिए ख़ास और खालिस ताल्लुक़ में जो खुदाए कदूस के साथ है, वो किसका खौफ चाहिए, सिर्फ किसका, खुदा का। 8वें बाब की कौन सी पढ़ी थी, हाँ जी, 13वीं आयत हमने पढ़ी। इसी तरह पहले बाब की दूसरी आयत से चौथी आयत तक पढ़े। से लदी हुई को बदकिरदारों की नस्ल बदकार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया। इसराइल के कदूस को गिर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। तमाम सा बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त, तमाम सर बीमार है। और ये खालिस और ख़ास ताल्लुक़ में, यानी गुनाह में से पहली चीज़ जो उसने सिखाई वो बरगस्तगी थी। जो पहली चीज़ सिखाई वो क्या थी, बरगस्तगी, गुनाह यानी के ख़िलाफ़, और यानी इसराइल का कदूस, और लेकिन उसकी नस्ल जिसे वो महबूब कहता है, वो बरगस्ता नस्ल, बरगस्तगी। इस हिस्से में हमने बरगस्तगी के बारे में देखा। और 30वें बाब की पहली 2 आयत भी सुनिए। क्योंकि देखो खुदावंद रब्बुल फ़ाज यरूशलेम और यहूदा से सहारा और तकिया, रोटी का तमाम सहारा और पानी का तमाम तकिया दूर कर देगा। यानी मुहादर और साहिब जंग को, गाजी और नबी को, फागियों को, 50-50 के सरदारों और इज़्ज़तदारों और सलाहकारों और होशियार कारीगरों और माहिर जादूगरों को। 30वें बाब की पहली 2 आयत जी। ये लफ्ज़ मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहे। 30वें बाब की 30वां बाब, हाँ,
गौर करें कि वो मुझसे पूछे बगैर और माबूद हो, है ना। अगर खुदा से पूछेंगे तो मार पड़ेगी, ऐसे ही ना कि खुदावंद मैं हनुमान जी की रक्षा बन लवा कि ना बना, है ना। क्या काली माता की चुन्नी तान लूँ, या अगर पूछने जाएंगे तो क्या होगा, होएगा कि नहीं, मुश्किल होएगा कि नहीं, वहाँ सो होएगा ना। पूछने गए, अगर पूछने गए, वो कहता है मुझसे पूछे बगैर बरगश्ता कौम, बरगश्ता नस्ल, बरगश्ता लोग क्या करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं। और एक और जो गुनाह पर गुनाह यानी डींगे भी मारते हैं। आइए देखते हैं दूसरा बाब 6 आयत। तूने तो अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए कि वो अहले मशरिक की रस्मों से पुर हैं, अहले मशरिक की रस्म से पुर हैं, और फिलिस्तियों की मानी शगुन लेते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। और हाथ पर हाथ, ये क्या है, डींगे मारना। बड़ी अच्छी रस्म की थी मैं, है ना, ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त, मैं तो काम पूरा किया, है ना। ऐसे ना वो क्या करते हैं फ़लस्तीनियों कि क्या करते हैं वो, यार बोल दी नहीं, मुस्कुरा ही जाते रहे सारे, मतलब क्यों मुस्कुरा रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा, वाला ही पड़ा जी। क्या करते हैं वो, बेगानों पर की हाथ पर हाथ, किसी और माबूद के साथ लेकर बेगानों पर, है ना। फलस्तियों की मानद क्या करते हैं, शगुन लेते हैं, और बेगानों के हाथ पर हाथ, क्योंकि खुदा से क्या है, वो बरगश्ता है। और इसी तरह डींगे थोड़ी सी और भी देखते, 30 बाब की 8वीं आयत। उनकी और उनकी सरजमीन बुतों से भी पुर है। वो अपने ही हाथों की सनत यानी अपनी ही बुतों की कारीगरी को सजदा करते हैं। और ये बुत परस्ती भी जो है वो यानी उसके ऊपर भी डींग मारते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माबूद बड़ा है जी, जो जल्दी हम घड़ लेते हैं उस पर भी हम फ़ख्र करते हैं। कौन कौन सा, ए वेख भैन तेरी नज़र लगी ना, होने में चीनी मारनी वेखते से, है ना। इन्हें तो बगैर ठीक ही नहीं है, 2 मिनट लगने। और ऐसा ही होता है, क्या होता है, मिर्ची खुदा, चीनी खुदा, है ना। ऐसे ना माबूद घड़ते हैं ना, ऐसे ही माबूद घड़ रखे होते हैं घर में। और फिर इंडिगो में 5वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत, 15वीं और 16वीं आयत 5वें बाब की। और छोटा आदमी झुकाया जाएगा और बड़ा आदमी पस्त होगा, और मगरूरों की आंखें नीची हो जाएगी, लेकिन रब्बुल अफ़ात अदालत में सरबुलंद होगा, और खुदाए कदूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। सदाकत क्या है कि गरूर और तकब्बुर जो है वो क्या हो झुकाया जाए, है ना। इसी बाब की 19वीं आयत भी पढ़िए। और जो कहते हैं कि वो जल्दी करें और फुर्ती से अपना काम करके हम देखें, और इसराइल के कदूस की मशवरत नज़दीक हो, और आन पहुंचे, ताकि हम उसे जानें। डींगों में कुछ नहीं, डींगों में क्या नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए खुदाए कदूस की तकदीस। इसी तरह हम 18वें बाब की जो है वो 28वें बाब की 15वीं आयत जो है वो ज़रूर पढ़ें। 28वां बाब। क्योंकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया है। जब सज़ा का सराब आएगा तो हम तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और द्रोहगोई की आड़ में छिप गए हैं। जब सैलाब आएगा तो क्या नहीं होगा, हम तक क्यों, क्या कर लिया हमने, झूठ को क्या किया है, पनाहगाह बना लिया है, और द्रोहगोई को क्या कर लिया, अपना ओढ़ना बिछोना, उसमें हम क्या है, चुप गए। इसलिए गुनाह में बरगश्तगी और गुनाह में डींगे, और इसी तरह गुनाह में मिली जुली इबादत जिससे खुदा को क्या है, नफरत है। और ये पहले बाब से 39वें बाब तक हमने सीखा। पहले बाब की 10वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़िए। गुनाह से मिली जुली इबादत जी। सदूक के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शिकत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम। मैं मेंढों की सौख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से
बेजार हूँ और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोक लो। आइंदा को बातिल हदिये न लाना, मकबूल से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्र और ईदी जुमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं जी। मेरे दिल को तुम्हारे लिए तुम्हारे नए चांदों चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर करें, अगर हम यहाँ पर इबादत करते हों और फिर हम बूतनियों और उनको भी मानते हों, हम शगुन प्रस्त भी हों, हम नए चांद और चीज़ों को भी क्या करते हों, मानते हों, इबादत के लिए हम यहाँ आते हों, दूसरे माबूदों को मानने के लिए सारा हफ्ता हम क्या करते रहें, मेहनत करते रहें, खौफ हमारे अंदर से जाता ना हो, हम मगलूब हों और बरगश्ता कौम गुनाह से लदी हुई और गुनाह से लबरेज इबादत खुदा की, खुदा उसको क्या नहीं करना चाहता, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए गौर करें कि हमने पहले बाब से 39वें बाब तक जो मज़मून सीखे सुने वो हकीकतन बड़े सख्त थे, वो हकीकतन समझने और सीखने वाले थे। 29वें बाब की 13वीं आयत जो है उसको भी हम देखें। होठों से, जुबान से, लेकिन मुझसे क्या दूर है, दिल इनके क्या है, दूर है। और इसी तरह 8वें बाब की 19वीं आयत जो है वो भी हम देखें। और जब वो तुमसे कहें तुम जिन्नात के यारों और अफसूनगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? क्या जिंदों की बाबत किन की तलाश करते हैं? मेरे घर जनाब कौन घुसा है, को भूतनी घुसाई है ना, मेरे घर में क्या हो गया है, भूतनी घुसाई, मेरे फलां ने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, तावीज़ कर दिया, मेरे फलां ने ये कर दिया, मुझे नज़र ला के ऐते है ही इंज दी, मेरे मुंडे ने वेख्या इन्हें सुबह सुबह ही। तो क्या है, क्या है, क्या करो, क्या करो, किससे राब्ता करो, किससे राब्ता करो? गौर करें कि जब हम खौफ में जाते तो ये पहला बाब से लेकर 39वें बाब तक यानी मिली जुली इबादत जो है, सारा काम ही चलाया ना, है ना, सारा ही काम इकट्ठा ही चलन डया, बीच में ही फुसफुसाने वाले जादूगर है ना, जो जिन्होंने मुकाशफा या किसी ना किसी हवाले का क्या किया होता है, विरद किया होता है। क्या करें, हम खुदा के महबूब ठहरे और खुदा के क्या बने, फर्जंद ठहरे। उनको किसी की ज़रूरत नहीं कि वो उनके लिए आके क्या करें, इल्तिजा करें, दुआ करें या कोई ऐसा मसला करें। इसलिए मेरे जो मिली जुली इबादत है वो भी खुदा के लिए क्या है, बार है। अगर आप घर में जाकर पढ़ें दूसरे बाब की 6ठी आयत से 8वीं, 17वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत, 30वें बाब की 22वीं आयत, 31वें बाब की 7वीं आयत, तो ये मिली जुली गुनाह से मिली जुली इबादत जो है खुदा को इससे नफ़रत है। और फिर इसी तरह जो इसराइल का कद्दूस है, जब हम उसमें गुनाह के हवाले से जो 3 हिस्से हमने सीखे, यानी बरगश्तगी, डींगे मारना और इबादत जिसमें गुनाह की क्या थी, आमेज़श थी, खुदा उसकी बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह अदालत और नजात भी इन्हीं 39 बाब में हमने देखा। 28वें बाब की 23वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़िए। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो, चिल्ला होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोलने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और
और जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से छांटता है और जीरे को छड़ी से। 40। गौर करें कि वो उसने अदालत का जिक्र किस तरह से किया और किस तरह से हमने सीखा कि जब हल चलाया जाता है उसमें से पत्थर, उसमें से जड़ी बूटियाँ और हर चीज़ क्या है निकाल दी जाती है, वो तैयार कर ली जाती है। उसके बाद क्या है, उसमें बीज ही बोना है, लेकिन अगले दिन फिर पता लगे कि उसमें फिर पत्थर हैं और निकालने हैं। रोज़ एक पत्थर निकाला जाए, वही फिर अगले दिन क्या हो, पत्थर हो। तो इसका मतलब है कि कभी भी वहाँ पर फसल नहीं बोई जा सकती। खुदा आपको यानी जो हमारे अंदर भूतनियों का खौफ, जो हमारे अंदर मखलूक़ात को खुदा के बराबर बनाने का खौफ, और फिर गुनाह यानी बरगस्तगी हमारे अंदर पाई जाती हो, डींगे पाई जाती हों, गुनाह से मिली जुली इबादत जो हम करते हैं, जब वो पत्थर खुदा निकाल देता है तो वो फिर कलाम का बीज क्या है बोता है ताकि वो क्या हो, फलदार हो। लेकिन अगर रोज़ ही पत्थर ही निकालने पड़े, रोज़ ही हल ही बोना पड़े, तो किस दिन उसमें बोया जाएगा। अगर रोज़ ही एक ही काम किया जाए, और यही कलीसियाओं में भी यही होता है कि पैगाम सुनाया जाता है, क्या किया जाता है, पैगाम सुनाया जाता है, लेकिन फिर भी एडा सारा पत्थर है ना, ऐसे ही होता है ना, पत्थर पादी सा रोड़े चुक चुक के पत्थर काट काट के उन्होंने ला के रह जाता है ना, रह जाता है कि नहीं। सुबह मैं आपको बताता हूँ, मेरी ऐसे ही अचानक ही कमर में पसलियों में थोड़ी सी दर्द हुई, तो मैंने सोचा क्या नहीं, मुझसे तैयारी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा मैं चले सलासर भाई या किसी को, अंजम भाई किसी को कहता हूँ आज पैगाम वो दे दे। तो लेकिन फिर भी पेन मेरे अभी भी है, लेकिन मैंने कहा आज देखी जाएगी, जो भी होगा यही काम चलेगा। वो पता लगा कि पत्थर काट काट के है ना पत्थर काट काट के कमर से दर्द जड़ी है ना। थोड़ी सी जगह हम खोदते हैं, भाई इकबाल भाई भी साथ होते हैं, बाबर भाई, थोड़ी सी जगह से हमने दर्जनों के हिसाब से ईंटें और पत्थर निकाले। अगर ऐसा ही हो कलीसिया में कि रोज़ क्या करें, पत्थर निकालें, जहाँ से मैंने पत्थर निकाल दिए वो अगर आप बाहर जाके देखेंगे, फिर भी जब वो उसको खोदते उसमें से कोई ना, मैंने नाम रख दिया अंकल निकल आया। हाँ जी, हाँ जी, इकबाल भाई, मैं कि फिर कोई अंकल निकल आया, मैं कि जी हाँ ना। तो अगर रोज़ ही अंकल निकालें, हर अतवार ही अंकल ही निकालते रहे, अंकल तो फिर बहुत सारे हैं, क्योंकि हम उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वो हमारे अंदर खौफ की हद तक हमारे अंदर मौजूद हैं। इसलिए खुदा बड़े सख्त अल्फाज के साथ इस पहले बाब से 39वें बाब तक आपके साथ मुखातिब रहा। अदालत में यानी हम छठे बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक भी पढ़ें, अदालत और नजात। जी, तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वीरान न हों और कोई बसने वाला न रहे और घर बेचराव न हो और जमीन सरासर उजाड़ न हो जाए। और खुदावंद आदमियों को दूर कर दे और इस सरजमीन में मतरूब मुकाम बकसरत हों, और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच जाए तो वो फिर बसम किया जाएगा, लेकिन वो बुत्ता और बलि की मानित होगा कि वो के बावजूद ये कि वो काटे जाएं तो भी उनका टोंट बच है, तो उनका टोंट एक मुकद्दस मुकाम होगा। गौर करें कि अदालत और नजात में वो किस हद तक कदूसियत को अपने सामने रखेगा, किस हद तक इंसान को पाक करेगा, कि वो आखिरी हद तक है ना, वो आखिरी हद तक कोशिश करेगा कि खुदा के लोग उसकी तरह क्या हों, कदूस और पाक हों। और फिर दो चीज़ें जल्दी जल्दी से हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि गैर अक़वाम के लिए नजात जो है वो उसका भी ऐलान किया गया। 19वें बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक हम पढ़ें। जी, उस रोज मुल्क मिस्र में 5 शहर होंगे जो
उस वक्त मुल्क मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मसबा और उसकी सरहद पर खुदावंद का एक स्तूप होगा। और वो मुल्क मिस्र में नबो ख्वाल के लिए निशान और दुआ होगा, इसलिए कि वो सुकून पर उनके जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे और वो उनके लिए रिहाई देने वाला और हामी भेजेगा और वो उनको रिहाई दे। खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे और ज़बीहे और हदिये बुलाएंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे और अदा करेंगे और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे और वो उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा। उनको क्या करेगा? सेहत बख्शेगा। सो कौमों को, गैर कौमों के लिए सेहत, नजात का भी हमने इसमें से सीखा। और ये इसीलिए जो यशाया है वो पुराने अहदनामे का क्या है? मुबशर है और उसने वो बशारत का कौमों के लिए, इसके बारे में भी हमने भरपूर तरीके से इसमें से सीखा। इसराइल के कद्दूस पर हम भरोसा करें, तो आखिरी चीज़ हमने इसमें से सीखी। 8वें बाब की 13वीं आयत पढ़े, इसराइल के कद्दूस पर क्या करें? भरोसा करें। तुम रब्बुल अफ़वाज को कद्दूस मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उससे हाकिम खाइफ रहो। क्या करो? क्या करो? उसी को क्या करो? उसी पर भरोसा रखें, उसी से खाइफ रहें, सिर्फ उसी खुदा से। मखलूकात के बने हुए माबूद जो घर में हम बना लेते हैं माबूद, और घर में ही खौफ बना लेते हैं, उसमें से क्या हो? बाहर आकर सिर्फ खुदा का क्या करो? खौफ, उसी पर भरोसा रखो। और कोई मखलूक तुम्हें क्या नहीं कर सकेगी? खौफ ज़दा ना कर सकेगी। और इसी तरह हम 10वें बाब की 10वें बाब की 20वीं आयत जो है वो भी पढ़ें। और उस वक्त यूं होगा कि जो बनी इस्राएल में से बाकी रह जाएंगे और याकूब के घराने में से बच रहेंगे, उस पर उनको मारा फिर कत्या न करेंगे। यानी दरअसल खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, लेकिन जब खुदा पर भरोसा नहीं तो फिर नताइज फ़र्क हो सकते हैं। 17वें बाब की 7वीं आयत भी हम पढ़े। खालिद की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के कद्दूस की तरफ देखेंगी। उसकी आंखें किसकी? इंसान की आंखें किसकी तरफ? इस्राएल के कद्दूस की तरफ होंगी। 28वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए, कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो पे ईमान आता है कायम रहेगा। और मैं अदालत को सूद और सदाकत को सबूत बनाऊंगा और कोने झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे और पानी छिपने के मकाम पर फैल जाएगा। शुक्रिया। कोने के सिरे का पत्थर, उसको इंसान को क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। और वो कौन है? अल मसीह ने कहा कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर कहलाया। और अगर आप कोने के सिरे के पत्थर को रद्द करने वाले हैं और कदम कदम पर रद्द करने वाले हैं और ख़ानदान और कलीसिया में रद्द करने वाले हैं, गैर कौमों में रद्द करने वाले हैं, तो फिर हमें करने की क्या ज़रूरत है कि हम इसराइल के कद्दूस पर क्या रखें? भरोसा रखें। 30वें बाब की 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि खुदावंद यहोवा इसराइल का कद्दूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये न चाहा। क्या हम चाहते हैं कि हम इसराइल के कद्दूस के महबूब
उसके बेटे और बेटियां उसके पास वापस आने वाले, बरगस्तगी को छोड़ने वाले, डींगों को छोड़ने वाले और मखलूक़ात के खौफ को छोड़ने वाले, और वापस आना यानी वापस खुदा के पास लौट आए। लेकिन कैसे लौटें? वो सब कुछ साथ लेकर, या क्या करें? उन सब चीज़ों को छोड़कर खुदा की तरफ क्या करें? लौट आए। और यही इसी में क्या है? इसी में क्या है? भलाई है। इसलिए मेरे अजीज़ों, पहले बाब से 39वें बाब तक हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा, और यानी इस्राएल का कद्दूस, और उसमें से हमने जो मुख्तलिफ मज़ामीन सीखे समझे वो बिल्कुल वाज़ेह थे, हमारे लिए खुलकर हमारे सामने आए। और नतीजा क्या है कि हम अपने खुदा की तरफ वापस लौट आए। और किस तरह लौटें? कि ना ही बरगस्तगी हो, ना ही डींगे हो, ना ही मिली जुली इबादत हो, और ना ही क्या हो? खुदा के ख़िलाफ़ हम रद्द किए गए, खुदा ने हमें रद्द किया हो, बल्कि हम वापस लौट आए और खुदा के कद्दूस की उसकी कदूसियत के ऐन मुताबिक अपने आप को पाक करने के लिए, ताकि हमारी तकदीस की जाए, खुदा के अपने आप को सुपुर्द कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और गौर करें कि इन 39 अबवाब में खुदा ने हमें किस तरह से हमारे उस खेत में से पत्थर, रोड़ा, हर चीज़ निकालने की कोशिश की और कलाम को बोया ताकि वो फलावर हो, फलदार हो, और हम खुदा कद्दूस के घर में हकीकतन अंगूर के हकीकी दरख्त की शाखें हों। हम अपने सरों को झुकाकर गौर करें कि हमने किस हद तक इन 39 अबवाब में से सीखा और खुदा कद्दूस की बात को तस्लीम किया। हवाला जात पढ़े गए। पढ़ना कौन सा चाहिए था? 40वें बाब में से